सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आज का मैसेज जोशुआ चैप्टर 20 वर्स 27। आज का संदेश है यहोशू की किताब उसका 20 अध्याय 7 वचन। And they appointed Kadesh in Galilee, in Mount Naphtali, and Shechem in Mount Ephraim, and Kirjataba, which is Hebron, in the mountain of Judah. मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उसके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। May the Lord bless this verse and speak to us this evening, to me and to all of us. प्रभु इन पढ़े हुए शास्त्र भाग के द्वारा आशीष करे और हम सबों से बातें करे। छोटा प्रार्थना। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस इवनिंग 14 September 2021. Lord, we ask of you to bless this word, break as a bread of life, and distribute to me and to all of us. Meet all our spiritual needs, hunger and thirst. Thank thee for this privilege given to me to meet thy people from Orissa and also Jharkhand. Bless thy word and anoint me, use me as your mouthpiece. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. आमीन। Last week we didn't have a message. Previous week we have seen the cities of refuge. Cities of refuge. पिछले सप्ताह हमने और वचन भाग नहीं देखा था। उससे पहले हमने देखा था कि जो नगर हैं शरण के नगर हैं। There are 6 cities of refuge mentioned in Joshua chapter 20. तो यहोशू की किताब में 20 अध्याय में ऐसे 6 शरण नगर के बारे में लिखा गया है। In the same message, it is there in Numbers 35. अब से उसी संदेश को गिनती उसके 35 अध्याय में भी लिखा है। And the same message is there in Deuteronomy chapter 19. और वही संदेश जो है व्यवस्था विवरण 19 अध्याय में भी लिखा हुआ है। Now we are reading from Joshua chapter 20. और अभी हम यहोशू 20 अध्याय को पढ़ रहे हैं। If anybody kills anybody unaware, that is verse 3, that the slayer that killeth any person unawares and unwittingly may flee thither, and they shall be your refuge from the avenger of blood. Verse 3, 23, verse 3. 20 अध्याय का 3 वचन, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए, इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। In the Old Testament, if anybody commits any sin, they need to be punished. There is no grace. They need to be punished. That is the law in the Old Testament. जो कि पुराना नियम के विधान को हम जब ध्यान करते हैं तो वहाँ पर अनुग्रह नहीं था। जो कोई भी पाप करता है तो उनका नष्ट हो जाना था, उनके लिए मार डाला जाना था। ये एक पुराना नियम का न्याय था। Deuteronomy 19 verse 21. व्यवस्था विवरण 19 अध्याय और 21 पद। Deuteronomy 19:21. Let us read. आइए उस पद को पढ़ें। 19 अध्याय 21 पद।
And thine eye shall not pity, but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. और तू बिल्कुल तरस न खाना, प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पांव के बदले पांव का दंड देना। In the Old Testament days, this is the principle of God, law of God, that sin has to be punished, nobody should be pardoned. तो पुराना नियम का ये जो है परमेश्वर का और आज्ञा थी, व्यवस्था और नियम था कि जो कोई भी पाप करता है उस पर तरस नहीं खाना है, उसे दंड देना अवश्य है। Thank God we are not in the Old Testament days. If we were in the Old Testament days, none of us would have been alive, would have been killed long back. तो और हम अगर पुराना नियम में क्या जीवन में पाए जाते थे तो हम भी और बचते नहीं थे, हम भी मार डाले जाते थे। In spite of this stringent, strict law, if anybody kills anyone by mistake, God made a provision for such people to run into a place called city of refuge. और इसी नीति से जो कोई भी पुराना नियम में यहाँ पर एक परमेश्वर ने शरण को नगर को रखा था। कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है तो उनके लिए एक शरण नगर था और वहां जाकर के दौड़ करके उसमें भाग कर बच जाते थे। By mistake killing somebody means somebody cutting the tree and that instrument fallen on somebody by mistake, other man died. At that time we should not punish him. और जब कोई भी पेड़ काटते समय अगर कुल्हाड़ा और गलती से वो फिसल करके गिर करके किसी के ऊपर लग जाता है और वो मर जाता है, तो ऐसी अवस्था में और उसे दंड नहीं है, लेकिन वहां पर करके जाकर के भाग जाना। So not willingly, by mistake, if anything happens, anything wrong happens, that person should not be punished. There should be a provision that they should go to a place of refuge and they can hide themselves till the anger is quenched from other side of the person. तो जानबूझ करके किसी ने कोई किसी की हत्या नहीं की है, परंतु अनजाने में ही किसी के और बिना सोचे विचारे उसके जो है गलती से वो मर गया है, हत्या हो गई है, तो उसका बदला लेने वाला से बचने के लिए वो दौड़ करके ऐसे शरण नगर की ओर जा करके और वहां पर बच जाना है। So there are six. Number 6 has got its own importance. Already I told you earlier. Why 6? Why 6? 6 is a man's number. God made man on 6th day and took rest on 7th day. तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और 6 नंबर क्यों है? 6 नंबर जो है कि उसके मतलब को बताया है कि 6 नंबर मनुष्य का नंबर है और 6 दिन में मनुष्य को परमेश्वर बनाया है और 7वें दिन में विश्राम किया है। So 3 cities of refuge will be this side of Jordan, that is in Judah, and 3 cities other side of the Jordan. God made provision for Jewish people and heathen. That is what it means. All the people, God made provision for their salvation. तो यहाँ पर 6 नगर का मतलब है यर्दन के इस पार यहूदी जाति लोगों के लिए 3 नगर हैं और अन्य जातियों की यर्दन के उस पार 3 नगर हैं। मतलब है कि ये एक प्रबंध है, उद्धार का एक प्रबंध परमेश्वर की ओर से सारे लोगों के लिए है। Chapter 20 verse 7 में 3 देखा है। फर्स्ट वन इज कादेश, और 3 जो है कि 20 अध्याय में 3 देखा और उसमें से सबसे पहले कादेश को देखा। सेकेंड वन इज शेकेम, दूसरा शेकेम है। थर्ड वन इज हेब्रोन, और तीसरा है हेब्रोन। Every city of refuge has got a meaning. Every word has got a meaning. प्रत्येक नगर के जो नाम है उसका मतलब है।
Earlier we have seen the first cities of refuge, that is called Kadesh. पहले बार हमने जो नगर को देखा है उसका नाम है केदेश। What is the meaning of Kadesh? If you remember, can anybody tell? Anyway, what is the meaning of Kadesh? किसी को स्मरण है, याद है जो केदेश का मतलब क्या है? Kadesh means holiness, holiness. हाँ, कादेश का मतलब है पवित्रता। And by birth, as everybody knows, we are sinful people. We have no holy life. और जन्म ही से मनुष्य एक पाप में जन्मा हुआ पापी मनुष्य है और उसमें कोई पवित्रता नहीं है। God is holy and man created by God, he is unholy. और यह कि परमेश्वर पवित्र है और परंतु मनुष्य स्वभाव से ही पाप में जन्मा है। There is a great distance between holiness and unholiness. पवित्रता और अपवित्रता का बहुत बड़ा अंतर हम देखते हैं। Unholy man cannot reach holy God. अपवित्र मनुष्य परमेश्वर के पास कतई पहुंच नहीं सकता है। Man may do many things in the name of God, but he remains as unholy man. और देखते हैं कि परमेश्वर और पापी मनुष्य पर और वो सब कुछ कर सकता है लेकिन पापी मनुष्य बच नहीं सकता है। As we are aware that there is no medicine for making unholy man into holy man. हर कोई दवा नहीं है कि और जिससे अपवित्र मनुष्य और पवित्र बन पाए। If somebody is born in America also, he doesn't become holy. He is still unholy. अगर वो कोई व्यक्ति अमेरिका पर भी होने दीजिए, जन्म होने दीजिए, तो भी वहाँ पर पवित्र व्यक्ति नहीं है, वो भी एक अपवित्र व्यक्ति है। If somebody born in Jerusalem also, he will be unholy. अगर कोई व्यक्ति यरूशलेम में ही क्यों ना पैदा हो तो भी वो अपवित्र व्यक्ति है। Israel country, people call it as holy land, holy land. और इस्राएली लोग इसको होली लैंड मतलब पवित्र Israel country is called as holy land, whole country. पूरा इस्राएल का देश कनान देश को और पवित्र देश कहा जाता है। People will tell, have you visited holy land? Instead of telling Israel, they will tell, have you visited holy land, holy land. हर लोग कहते हैं कि क्या आप होली लैंड को आपने जाकर के वहां पर देखा है? This may be holy land, but people whoever is born there, they are all unholy except Lord Jesus Christ, who was born to Virgin Mary. तो हो सकता है वो पवित्र भूमि में पैदा क्यों ना हुआ हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह को छोड़ सभी जो है वो अपवित्र रूप से जन्म हुए हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के और कुंवारी मरियम से पवित्र रूप से जन्म लिए। In order to convert unholy man into holy man, holy God came down from heaven and died on the cross of Calvary. तो और अपवित्र व्यक्ति को पवित्र व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और कलवरी के क्रूस के ऊपर में अपने आप को बलिदान कर लिए। Only through Lord Jesus Christ, person who is born in sin, any nation, any country, any continent, you will become holy person only through Lord Jesus Christ. There is no other way, there is no other means. कोई मतलब नहीं, कोई और मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है और केवल पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वही हमें और अधर्मी को पापी को पवित्र बना सकते हैं। When I was studying in high school, 9th class, I was an unholy man and holy God has been introduced to me. I believed in Jesus Christ. God made me from holiness to unholiness to holy.
तो मैं हाई स्कूल में 9वां क्लास में वर्ग में पढ़ता था। उस समय मैं एक पापी मनुष्य था और ऐसे समय में पवित्र परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे भेंट लिया और इस अपवित्र व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बनाया, पवित्र ठहराया। There is nothing, no merit in me, no goodness in me. I was so unholy, I was wretched, I was very wicked, but God has visited me and the blood of Jesus Christ cleansed me. Now I became God's child, a holy person. तो मेरे अंदर में कोई खूबी और लियाकत नहीं थी और मैं गिरा हुआ अपवित्र मनुष्य था, उछला हुआ था, परंतु मेरे अंदर में कोई भलाई नहीं थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने इस अपवित्र व्यक्ति को पवित्र बनाया और उसके द्वारा से मैं धर्मी ठहरा। Dear brother, dear sister, I hope that you already become from holiness to unholiness to holiness and you have come to the holy God. You believe Jesus Christ and your sins are forgiven. सो प्रिय भाई प्रिय बहनों, हम जानते हैं और ये हमारी आशा है कि आप सभी जो है और अपवित्र से पवित्रता की ओर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से छुटकारा पाए हैं और प्रभु आपको उद्धार दिया है। So Kadesh means holiness. Kadesh means holiness. केदेश का मतलब है पवित्रता। So holy God wants man to come to him so that he becomes unholy man to holy man. तो केदेश मतलब है और उस पवित्र प्रभु के पास अपवित्र लोग और को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। Now today we will go to second cities of refuge called Shechem. अभी हम दूसरा शरण नगर को हम देखेंगे जो शेकेम कहलाता है। The meaning of Shechem means God who bears our burden. God who bears our burdens. तो शेकेम का अर्थ है परमेश्वर हमारा बोझ को उठाने वाला है। That is called shoulder. Shoulder means we carry burden or any weight on our shoulder. Shechem means shoulder which carries burdens. शेकेम का अर्थ है कांधा, कांधा जिससे हम अपने बोझ को उठाते हैं। When I was a small boy, we didn't have a cycle also, and my father used to carry me on his shoulder wherever we go. When we go to some other city, some other place, walking 20-30 kilometers, and I remember that my father used to carry me upon his shoulder. तो जब मैं छोटा था तो हमारे पास साइकिल नहीं होता था, लेकिन मेरा पिता 30-35 किलोमीटर जहाँ कहीं भी जाते थे मुझे अपने कांधे पर उठा करके लिए चलते थे। Similarly, our Heavenly Father made provision after becoming God's children. He is assuring us that He will carry us and He will bear all our burdens, all our burdens. तो हम देखते हैं सेम उसी रीति से, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमें ऐसे ही उठाए रहता है और कांधे पर लिए हुए फिरता रहता है। If anybody carries our burden, so wonderful. If anybody takes our load, our burden, our sorrow, and it is so nice. It will be very nice if somebody carries us. और ये हमारे लिए कितना अद्भुत और भली बात होती है कि कोई हमें जो है कि कांधे पर उठाए फिरे, हमारा बोझ को उठाए, और ये हमारे लिए कितनी ही आनंद की बात है। Nobody can carry us, can carry all our burdens. My father, mother, wife, husband, they may carry little, but nobody can carry us all our burdens. Nobody except God. तो माता पिता और पत्नी कोई भी हो हमारी थोड़ी सी बोझ को उठा पाएंगे, परंतु पूरी बोझ को केवल प्रभु परमेश्वर ही हमारे सारा बोझ को उठाने में सामर्थ्य हैं। So first one, there are 5 thoughts in this Shechem.
how God bears us our burdens in five ways. God carries our burdens. तो 5 तरीके से हमारे बोझ को प्रभु उठाते हैं, और कैसे उठाते हैं देखेंगे। पहला हम देखेंगे। This evening, briefly, I will tell these 5 thoughts in 5 ways how God is carrying our burdens. इस संध्या के समय में 5 विचार और 5 तरीके से, 5 मार्ग से कैसे वो हमारा बोझ उठाता है, उसको हम देखेंगे। First thought, John's Gospel, chapter 1, verse 29. पहला और मार्ग है, पहला विचार है यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 29 पद। We know this verse, all of us very much. हम सभी इस पद को अच्छी रीति से जानते हैं। John's Gospel, chapter 1, verse 29. यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 29 पद। The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। So first part, Jesus Christ carries our own sin and the whole world's sin. He carried upon his shoulder, upon his body, and he became our burden bearer, Jesus Christ. तो पहला भाग, हम पहला विचार हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे अर्थात सारे जगत के पाप को अपने देह पर प्रभु यीशु मसीह उठा लिया है। Secondly, another thought, 1 Peter chapter 2 verse 24. और दूसरा और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24 पद में हम देखते हैं। 2:24, 1 Peter 2:24, we are very much aware this verse 2:24. और ये बहुत जाना पहचाना पद है और हम जानते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद। Who his own self bare our sins in his own body on the tree. वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। And another verse, Isaiah 53 verse 6, the Lord has laid on him all the iniquities of our sin. That is Isaiah 53 verse 6. और यशायाह उसका 53 अध्याय का 6 पद, उसने हमारे पापों को उठा लिया। So these 3 verses shows clearly Jesus Christ has become our sin bearer, our sin, burden of sin. He carries upon his own body on his shoulder, and he delivers us from all this sin and trespasses. तो इन 3 पदों से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों को अपने देह पर, अपने कांधे पर और बोझ को उठाने वाला, पाप को बोझ को उठाने वाला बना है। We know that famous verse, gospel verse, Matthew 11:26, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. और हम इस पद को, जो बहुत ही जाना पहचाना सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया वचन है, और मत्ती 11 अध्याय का 28 पद, हे सब परिश्रम करने वाले पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहा। So the first thought is our Lord, He carries our sins, He carries our burdens upon Himself. तो हम पहले विचार हम देखते हैं कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह और उसने हमारे पापों को उठाया, उसने अपने देह पर हमारे पाप का बोझ को उठाया है। Secondly, दूसरा, like a shepherd, he carries us upon his shoulder. Like a shepherd carries sheep, a sheep that has gone astray, God
God searches us and He carries us upon His shoulder. जैसे चरवाहा अपने कांधे पर और जो उसका जो भेड़ है उसको उठा करके ले चलता है, वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आगे और कांधे पर उठाए हुए लेकर के चलता है। We know that story in Luke's Gospel chapter 15, how a shepherd has 100 sheep. One sheep went astray. Shepherd left 99 sheep and went in search of the sheep that has gone astray. और हम इस कहानी को जानते हैं लूक का सुसमाचार 15 अध्याय में कि जब एक भेड़ खो गया है तो प्रभु यीशु मसीह और उस चरवाहा ने 99 भेड़ को जंगल में छोड़ करके उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल ना जाए उसे वो ढूंढता रहा। This is the wonderful story how when we are lost in this world, went on our way and got into this sin sickness, sin bushes, how Jesus Christ came in search of us and He has carried us upon His own shoulders. तो हम देखते हैं कि वो कितना और अद्भुत और सुंदर कहानी है। उसी रीति से हम इस संसार रूपी मार्ग में अपने मार्ग को ले लिए थे, भटक गए थे, झाड़ियों में हम पाप की झाड़ियों में फंस गए थे। वैसे समय में प्रभु यीशु मसीह और हमें ढूंढने के लिए आया, ढूंढ करके उसने हमें उठाया और उस चरवाहे के मानिए अपने कांधे पर हमें उठा कर लिए चलता है। He is a good shepherd and chief shepherd. He went in search of one sheep that has gone astray and searched for it and carried upon his shoulder. तो प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत चरवाहा है और उसी रीति से वो इस पृथ्वी पर आ करके उसने हमें ढूंढा है और हम जो भटक गए थे अपने मार्ग ले लिए थे वहां से हमें उठा करके अपने और कांधे पर उठा करके हमें लिए चलता है। You know this verse, Romans chapter 3 verse 12, Romans 3:12. हम इस पद को हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 12 पद को। This is a wonderful verse. Once we'll read this verse 3:12. It reminds us how God is so great for us. 3:12. इस बहुत सुंदर अद्भुत पद है, हमें परमेश्वर का ऐसे हमें स्मरण दिलाता। देखिए उसका 12 पद, They are all gone out of the way, they are together became unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। Verse 13, their throat is an open sepulchre. 13 पद, उनका गला खुली हुई कब्र है। With their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips. उन्होंने अपने जीवों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। 3:23 we know very well, all have sinned and come short of the glory of God. 3:23 को हम भली भांति जानते हैं, अर्थात परमेश्वर की इसलिए कि हम सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So when this is our condition, we have gone astray from God. We went on our own way and got into terrible sin, and Jesus Christ, the good shepherd, chief shepherd, He came in search of us and He carried us upon His shoulder. तो ऐसे ठीक इसी रीति से हम सभी अपना मार्ग ले लिए थे, हम भटक गए थे और ऐसे खो गए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आया और एक हमारे लिए भला अच्छा चरवाहा, प्रधान चरवाहा बन करके ढूंढने आया। उसने हमें ढूंढा, खोजा और अपने कांधे पर उठा करके हमें लिए चल रहा है। No one will search for a lost sheep, no one, but a shepherd, good shepherd only
will go and search for it. Thus similarly, when we are lost in the sin, Jesus Christ himself came to us and he carried us. कोई भी खोए हुए भटके हुए भेड़ को नहीं ढूंढता है और कोई अच्छा चरवाहा नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बन करके और हम जो खो गए थे, पाप में भटक गए थे, और हम लोगों को ऐसे और भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह आकर के ढूंढा और हमें अपने पास लाया। And thirdly, तीसरा विचार हम देखते हैं Exodus chapter 28, निर्गमन उसके 28 अध्याय chapter verse 9 and verse 10, 28, 9 and 10. 28 अध्याय 9 और 10 पद। Here the high priest carrying all the 12 stones, that is the all 12 tribes upon his breast. तो यहाँ महायाजक को हम देखते हैं कि वो 12 गोत्र का नाम में उसने जो है और 12 प्रकार के और पत्थर मणियों को अपने छाती पर उठाए रहता है। He can put up upon his back, why he is putting upon his breast? See, imagine anybody will carry upon the back, not upon the chest or upon the breast. तो कोई भी जब वो उठाता है तो पीठ पर उठाता है और छाती पर कोई नहीं उठाता, परंतु यहाँ पर क्यों छाती पर उठाया है? We see in tea gardens how when they are cutting the tea leaves, they carry all this weight upon their back, not upon their breast. हम देखते हैं ये चाय बागानों में जब और चाय के पत्तियों को जो तोड़ते हैं तो वो अपने चाय के पत्तियों को पीठ के पीछे में उसके बैग में वो डालते हैं, छाती पर नहीं रखते हैं। But our Lord Jesus Christ is our high priest. He is carrying us upon his breast, upon his chest. परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है, वो हमें और पीठ पर नहीं पर हमें छाती पर उठाए हुए लिए चल रहा है। All these 12 tribes resembling one stone. It is fixed in a breastplate, and his breastplate he fixes upon his chest and serves. How a high priest serves God in the temple of God. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे महायाजक और पीठ पर और उस 12 गोत्र के नाम में 12 मणियों को और नाम को रखा है, क्योंकि ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हमें उठा लेता है। Not only he is carrying these 12 names upon his shoulder, upon the chest, but also he is carrying these 12 names upon his shoulder. तो हम देखते हैं प्रियो कि किस तरह से वो हमारे बादन में he is carrying this high priest is carrying these 12 tribes upon his shoulders also, shoulders. तो जो हाई प्रीस्ट जो महायाजक होता है वो कांधे पर भी और अपना और नामों को और उसको उठाए रहता है। अभी देखो Exodus 28, 9 and 10. Exodus 28, 9 and 10. निर्गमन 28 अध्याय 9 और 10 पद। And thou shalt take 2 onyx stones and grave on them the names of the children of Israel. Verse 10. 6 of their names on one stone, and the other 6 names of the rest on the other stone, according to their birth. फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना, उनके नामों में से 6 एक मणि पर और 6 नाम दूसरे मणि पर इस्राएली के पुत्रों के उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना।
verse 12, 28:12, and thou shalt put the two stones upon the shoulders of the ephod. और 12 पद में, और दोनों मणियों को एपोद के कांधों पर लगवाना। So high priest carries 12 names, 6 names upon one shoulder, 6 names upon other shoulder. तो जो महायाजक होता है ये 6 मणियों को दूसरे एक कांधे में और 6 मणियों को और दूसरे साइड के कांधे पर उठाता है। Here also number 6 comes, 2, 6, shoulder 1, shoulder 2, 6 and 6. और 2 कांधा है, 6 इधर है 6 उधर है, दोनों तरफ है। And this name should be engraved on one stone as per their birth order. Birth order. First Reuben, like that birth order. Reuben, Shimeon, Levi, Judah, like that as per the birth order. और ये जन्म के और क्रम अनुसार, जन्म के अनुसार इन नामों को वहाँ पर क्रम अनुसार रखा गया है। So God values our birth order also, who is elder, and like that God has the value as per the birth order also. और परमेश्वर और इस बात के लिए महत्व देता है कि जो बड़ा है और जन्म अधिकार के अनुसार उसको जो है वो और देता है। In some families, some people will claim, I am eldest. Nobody tells me anything. I am eldest. I was born first. Like that they claim like that. तो जब कभी भी हम देखते हैं कि घरों में जो बड़े होते हैं और दावा करते हैं कि मैं बड़ा हूँ कह करके अधिकार चाहते हैं। They tell, you are ignoring me, you are not telling me anything, like that they tell. But God doesn't ignore. God values birth order. तो उनका एक दोष रहता है, वो दोष लगाते हैं कि मैं बड़ा हूँ अब मुझे नहीं पूछते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है इस जन्म अधिकार को और उसको जो है महत्व देता है। But when it comes to on the chest, when he placed all 12 stones, God changes order. It's called divine order. God is not following birth order. It comes as a divine order. लेकिन वो छाती पर के रखा हुआ मणियों से हम ये बात सीखते हैं कि वो जन्म अधिकार नहीं है, परंतु ये एक स्वर्गीय और ये क्रम है और उसको इसके अनुसार रखा है। So in the breastplate on the chest, God changed order, and against Reuben, God brings Judah. लेकिन अब देखिए जो बड़ा रूबेन था, अभी जो छाती पर जो रखा है और पौध को उसके अनुसार और पहला स्थान यहूदा को दिया है। Fourth man, as per the birth order, Judah is fourth. That is Reuben, Shimeon, Levite, Judah. Fourth man God picks up and puts in the first. देखिए वहाँ पर चौथा नंबर में यहूदा जन्म लिया, पहले रूबेन और शिमियोन और लेवी और यहूदा। Now on the chest breastplate, God keeps Judah first. लेकिन अभी जो छाती के और पौध में वहाँ पर पहला स्थान यहूदा को रखा है। You know very well, Judah means praising God, the man who praise God. आप सभी जानते हैं अच्छी रीति से यहूदा का मतलब होता है धन्यवाद, और परमेश्वर को मनुष्य धन्यवाद करता है। Those who worship God, those who praise God, God places them in the forefront, number one. और जो कोई भी प्रभु की आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है, उसका स्थान को आगे करता है, आगे ले जाता है उसे। This is called divine order, not man's order. Man's order is on the shoulder, that is birth order, but divine order is God's order. और ये जो कर्म है ये मनुष्य का कर्म नहीं है, और जो मनुष्य का कर्म है वो जो है कांधे को दर्शाया है, लेकिन छाती पर जो और पद को रखा है
वो एक स्वर्गीय क्रम है, स्वर्गीय अगुवाई है। Now Reuben cannot demand, no, I was born first. Here on the chest also, I should be first. No, God says, oh Reuben, you defiled yourself. You have spoiled yourself. You lost your position. Now there is one person, Judah, who is holy, who worships God. He takes first place. अभी जो है रूबेन जो है इस बात के लिए वो अधिकार नहीं जता सकता है। नहीं, वहां पर हम देखते हैं कि यहूदा और उसने पहला स्थान प्रभु को दिया, अपने आप को पवित्र बनाया, अशुद्धता से बचा, इसीलिए उसने प्रभु की आराधना किया, इसलिए वो पहला स्थान में है। So in the churches also we should keep holy people, worshiping people, divine people in the forefront, not seeing their height, weight, their silver and gold. We should not, and their influence, we should not place them spiritually in the forefront. Otherwise, work of God will be spoiled. In many places, work is spoiled because of this changing the order. तो ये स्वर्गीय क्रम को अगर नहीं पालन करने के द्वारा चर्च में भी इसको हमारे जीवन, चर्च में जो पवित्र है, जो और प्रभु की स्तुति आराधना करता है और पहला स्थान प्रभु को देता है, और उसी के अनुसार और क्रम के अनुसार कलीसिया में लोगों को और आगे लाना है। नहीं तो हमारे कलीसिया का जीवन का और सही स्थान नहीं मिलेगा। So third thought, he is our high priest who carries us not only on his shoulders, he carries us upon his breast or upon his chest. और तीसरा विचार हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर हमारे कांधे पर ही हमको बोझ उठाता है, नहीं, वो छाती पर भी और बोझ को उठाने वाला है। Fourth one, चौथा विचार Deuteronomy 32 verse 11. व्यवस्था विवरण और 31 अध्याय 11 पद। Deuteronomy 32 verse 11 please, 32 verse 11. माफ करिए, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसके 11 पद। Like eagle carries its small children and to high place and leave them while falling, eagle will go and rescue them. जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंखों पर उसको अपने परों पर उठा लिया। Let us read this verse, Deuteronomy 32 verse 11. हर इस पद को हम पढ़ते हैं। Deuteronomy 32 verse 11. व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय 11 पद। As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उनको अपने पैरों पर उठा लिया। God will train us, God will take us through suffering, and in the suffering, if God will come to our rescue when we cry, God will come and help us. Like eagle drops our own children from height, but it will not allow them to fall down and die. In between, eagle will interfere and protect them. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या उकाब जो है पक्षी है, वो एक और ट्रेनिंग देने वाला, प्रशिक्षण देने वाला हमारा परमेश्वर भी है, और हमें दुख कठिन परिस्थितियों में ले जाता है, परंतु वो हमें नहीं छोड़ता है। ऊंचाई में ले करके जिस रीति से उकाब अपने बच्चों को छोड़ देता है, लेकिन जब वो गिरते रहता है तो उनका नुकसान होने से पहले उसे उठा लेता है। So the fourth one, like an eagle, he carries us. तो
चौथा विचार हम देखते हैं कि उकाब कैसे वो ऊपर उठाता है। Fifth one and last one is very, very important. Fifth one and last one. और पांचवा और आखिरी बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। Psalm 68 verse 19. Psalm 68 verse 19. भजन संहिता 68 अध्याय और 19 पद। Psalm 68 verse 17. 68 19. 68 19. भजन संहिता 68 अध्याय और 19 पद। Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah. धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। सेला। So he is our high priest, he is our God, he is our shepherd, and he is bearing our burden every day, every day. तो वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा और महायाजक है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रतिदिन बोझ उठाने वाला और हमें उकाब के समान और प्रतिदिन बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। So wonderful God, wonderful Savior who carries us, not only carries us, and he takes us through all suffering, and along with us he also gives relief, and he carries us, he takes care of us every day, daily he loadeth with blessings. तो अद्भुत हमारा परमेश्वर है, वो हमें न केवल ले चलता है परंतु हमें कांधे में बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमें अगुवाई करता है, लिए चलता रहता है। So Shekya means shouldering or carrying our burden. 5 ways this God, Jesus Christ, is carrying our own burden upon himself. Our burdens he is carrying upon himself. तो शेकेम का मतलब है, यहाँ हम देखा कि कैसे वो हमारा कांधे पर जैसे बोझ उठाने वाला, और प्रतिदिन प्रभु हमारा और उद्धार करके प्रतिदिन हमारा सारे बोझ को उठाता है। We don't have to carry our burden. We have to roll our burden upon him. Whatever may be our burden, children burden, ministry burden, health burden, or wealth, anything, whatever burden we have, roll our burden upon him. He says, roll upon me, I will carry. You cannot carry. My daughter, my son, roll your burden upon me, I will carry for you. तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि कोई सा भी तुम्हारा और बोझ क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे और सेवा का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे और कुछ काम का हो, सारा बोझ को आप उठा नहीं सकते हो, इसलिए सारा बोझ को मेरे ऊपर में डाल दो और मैं तुम्हारा बोझ को उठाऊंगा बोल करके प्रभु हमसे बातें करता है। Psalm 55 verse 22. भजन संहिता 55 अध्याय और 22 पद। Cast thy burden upon the Lord. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। He shall sustain thee, he shall never suffer the righteous to be moved. वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। So cast your burden upon the Lord. Whatever may be our burden, let us cast upon him. कोई सा भी बोझ क्यों ना हो, आइए हम प्रभु के सामने में अपना ऊपर सारा बोझ डाल दें। Proverbs 16 verse 3. Proverbs 16 verse 3. नीति वचन 16 अध्याय 3 पद। Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। Lastly, one more verse, Isaiah 46 verse 4. Isaiah 46 verse 4. आइए आखिरी में यशायाह और 46 का 4।
Even to your old age, I am He. Even to hoar hairs, I will carry you. I have made, I will bear, even I will carry, I will deliver you. Lord says, I will carry you, my daughter, my son, in your old age, till your old age, even in your old age, I will carry you. तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, मैं तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए बीता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता रहूंगा। When we are small, our parents may carry us, like my father used to carry me when I was small. But when I am grown up, my father cannot carry me. अब जब मैं छोटा था तो मेरा पिता मुझे उठाए लिए फिरता रहता था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया हूँ अभी लेकिन मेरा पिता मुझे उठा नहीं सकता है। In our old age, many times we become burden to our children. We will burden. They feel that we are a burden to them. Not all, some people. और सभी नहीं, कुछ लोग जो है बुढ़ापा में और बोझ बन जाते हैं। But we are not burden to God. He is always for us. He is always with us. What a wonderful loving God we have. He doesn't feel that we are a burden to Him. लेकिन हम हमारा परमेश्वर के ऊपर में बोझ नहीं डालते हैं और हम इसे महसूस नहीं करते। We are blessing to Him. He will carry us. He will kiss us. He will embrace us in our old age. There is no one really to love us in our old age. Only this God, not only God now, He is God even in our old age. तो ऐसा हमारा प्रभु है, बुढ़ापे में भी बाल पकने तक भी आखिरी तक हमें और उठाए लिए चलने वाला प्रभु है। What a wonderful God we have! What a wonderful God we have! हमारा कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। My son, my daughter, in your old age, I know you will be forgotten, you will become a burden. But for me, you are not a burden. You will not be forgotten. I will carry you. I will carry you. That's what God is assuring us. और प्रभु कितना और ये बात को निश्चयता दिलाता है, मेरा बेटा मेरा बेटी बुढ़ापे तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा बोल करके वो हमें निश्चयता दिलाता है। This is what is called the Shekem, God who carries us. इसका मतलब वो शेकेम मतलब इसका मतलब परमेश्वर हमें उठाए लेता है कांधे में। He carries us upon his shoulder, nowhere else, upon his shoulder and upon his breast, chest. तो वो हमें लिए फिरता है, उठाए फिरता है, अपने कांधे पर, अपने छाती पर उसे उठाए लेता है। May our Lord bless this little word for our spiritual blessing. प्रभु इन विचारों के द्वारा हमसे बोले बातें करे और हमें आशीष दे। दुआ में से की दुआ करिए। आइए हम दुआ करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। आपने अद्भुत विचार को प्रभु जी आपने हमें बताया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यहोशू 20 अध्याय के 7 पद के अनुसार जो 6 शरण नगर हैं, वो दूसरा शरण नगर जो कांधा है, कांधे के बारे में बताया है। धन्यवाद देते हैं शेकेम का अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह 5 प्रकार से कांधे पर आता है। ऐसा महान धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप नहीं त्यागते हैं। आप सच्चा विश्वास प्रभु हैं, महान राजा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रतिदिन आप बोझ उठाने वाला प्रभु है। ऐसे प्रभु के ऊपर में अपना बोझ डालने के लिए हमें आप तैयार हैं प्रभु जी। स्वर्गीय क्रम बनाए रखें और प्रभु जी आराधना स्तुति करें। स्वर्गीय क्रम के अनुसार आप पहला स्थान प्रभु जी यहूदा को दिया, जो आराधना करते हैं, पवित्र बनते हैं।
और वही प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बनते हैं। प्रभु जी उन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। इस विचार के द्वारा भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप भजन 55 के 22 के अनुसार सारा बोझ उठाने में प्रभु जी संभालने में तो प्रतिज्ञा किया है, इसके लिए आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं। दयालु प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। शैया उसके 46 के 4 पद के अनुसार ऐसा कोई बोझ उठाने वाला नहीं है, केवल और केवल आप है। आपको हम धन्यवाद देते हैं, बड़ा ही प्रशंसा करते हैं। वचनों की रक्षा किए, जो वचन के सुनने प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए, आधारित होने के लिए सहायता चाहते हैं। जो रोगी दुख बीमार हैं सबों के साथ सारा लोगों का प्रभु आप बोझ उठा ले। प्रभु जी आप सारे लोग प्रभु जी सारा बोझ, चाहे वो प्रभु जी नौकरी की हो, चाहे शादी विवाह की हो, चाहे प्रभु सेवा की हो, चाहे अनेक बातों की हो, सब बोझ को आपके ऊपर में डालने के लिए प्रभु जी आप ऐसा महान प्रभु हैं, सहायता मदद कीजिए। आप हमें दुखों में ले जाते हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रभु आत्मिक ऊंचाई में ले जाएं। वो दयालु प्रभु काव्य के समान आप ट्रेनिंग देने वाला प्रभु है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। वचन की रक्षा के घेरे में रखें। प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम में सुने, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। भाई लीजिए। और हमारे उद्धार प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे संग और सब पवित्र लोगों के संग अब से लेकर युगांत तक होती है। आमीन। आमीन।